So, hello, good evening, students. Welcome to Learners Academy. So, please have a look at the time on your screen. It is 10:13 p.m. students, 10:13 p.m. And the reason why I am here at this point of time, online, is that one of our students from class 10th batch had some doubt in some question, in some maths question. I guess some pre-boards or some other type of exams running in their in their schools, so they are preparing for that. And she messaged me that I'm feeling difficult in solving a question, so she asked me a doubt. So the reason I'm here is to make a video on that particular question and send it to her. So students, you can see the teacher is ready for you every time, no matter what no matter what the time is, come what may, we are ready to help you. Now it's up to you how you want to utilize your teacher's time. The teacher is ready, but are you ready? So it's up to you now. So let's see the question. Let me download the snapshot once. 1 second. Okay, let's see the question. Okay, so the question has been downloaded, the snapshot has been downloaded. Let's read the question. It is from the chapter for chapter number 4 of your NCERT syllabus, quadratic equation. There's a word problem, a statement problem, which is given in this snapshot, which has to be converted into a quadratic equation. Then it needs to be solved out also. So let's see the question. A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meters less than its length. Its area is to be 4 square meters more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle, with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 meter. And there's a figure also given, but I think she missed to send me the figure. Okay, no problem. We will draw the figure. Let's draw the figure. तो बेसिकली बच्चों दो मेरे पास यहाँ पे पार्क्स हैं. वन इज अ रेक्टेंगुलर पार्क एंड वन इज अ पार्क इन द फॉर्म ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, चलो पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को बिफोर ड्राइंग द वीडियो. चलो नहीं तो एक काम करते हैं, लेट्स ड्रॉ ए रफ फिगर फर्स्ट एंड देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फेयर फिगर आल्सो, है ना. देयर इज अ रेक्टेंगुलर पार्क लाइक दिस. द फर्स्ट इंप्रेशन जैसा क्वेश्चन लगा मुझे, so it should be a rectangular park like this. We will draw the fair figure afterwards. So अभी रफ ही बना रहे हैं हम. It is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. Breadth जो है लेंथ से 3 मीटर कम है. So if we consider length as x meters, so the breadth will be x minus 3 meters straight away. Okay, now let's read further. Its area is to be 4 square meters more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles. So there's already an isosceles triangle made on the base of this, on the base, on the breadth of this, not base, on the breadth of दिस रेक्टेंगुलर ट्रायंगल. मतलब एक रेक्टेंगुलर ट्रायंगल है, उसके ब्रेड्थ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप में एक पार्क और है. एक पार्क ये है, एक पार्क है. अब इस पार्क का एरिया उस आइसोसेलेस ट्रायंगल की शेप में जो पार्क है उसके एरिया से 4 स्क्वायर मीटर्स, यू कैन सी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, राइट. ठीक है ना. आगे पढ़ते हैं. विथ इट्स बेस एज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क. यस, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है दैट इज द बेस. आपको पता होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो इक्वल साइड्स होती हैं. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो पता होगा कि ट्रायंगल विद टू इक्वल साइड्स एंड वन अनइक्वल साइड. तो उसमें जो वन अनइक्वल साइड होती है उसी को बेस कहा जाता है. तो इसका जो बेस है इट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, यानी कि रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेड्थ और आइसोसेलेस ट्रायंगल की बेस ये दोनों सेम है, राइट. तो अगर ये x माइनस 3 है तो ये भी x माइनस 3 है स्ट्रेट अवे. ओके, सो नाउ व्हाट. अच्छा, इसका अल्टीट्यूड भी गिवन. अल्टीट्यूड मींस द हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज आल्सो गिवन एज कितना, 12 मीटर. ये क्लियर कट गिवन है 12 मीटर. एंड फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो अब आपको कुछ ऐसा करना है कि लेंथ भी चाहिए, ब्रेड्थ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना. इसका एरिया उसके एरिया से 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है कि कम, एक बार देख लें. इट्स एरिया टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट इज ऑलरेडी. ओके, तो इसका एरिया इसके एरिया से +4 मीटर स्क्वायर है. +4 जो भी है उस वो जो भी है उससे +4 इधर चाहिए. दैट मीन्स अगर मान लो वहाँ 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट विल बी 104 मीटर स्क्वायर. चलो, तो एक बार अब इसका एक फेयर फिगर बना लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर फिगर बना लेते हैं. इट वॉज अ रफ फिगर, सॉरी.
गिव मी 2 minutes, just 2 minutes, and I'll draw the figure. So let's say this is the rectangular park, और इसका ये जो breadth है, इस breadth पे I need to construct an isosceles triangle like this. ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, डिजिटली इट मे नॉट लुक लाइक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट सीम्स टू बी एन स्केलिन ट्रायंगल, बट आप एडजस्ट कर लें, मान लेना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, क्योंकि मैं डिजिटली बना रहा हूँ, विद फ्री हैंड नहीं बना रहा हूँ, तो मान लेना कि दोनों साइड्स इक्वल है। हो सकता है कि स्केलिन ट्रायंगल बनाओ, एनीवेज, है ना। चलिए, तो इसमें हमको गिवन पॉइंट्स क्या क्या है, मतलब गिवन डेटा, द डेटा गिवन इज लाइक दैट, कि जो ब्रेड्थ है, क्या था, जो ब्रेड्थ है वो लेंथ से 3 मीटर कम है। तो देखो, कंपैरिजन, हम अगर अगर हमको कंपैरिजन गिवन है कि ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन द लेंथ, तो हम लेंथ को एक्स मानेंगे, क्योंकि ब्रेड्थ हैज बीन कंपेयर्ड टू लेंथ, तो जिससे कंपैरिजन होता है उसको एक्स मानने में फायदा होता है। ऐसा ही देखा है हमने, जिससे कंपैरिजन होता है उसको एक्स मानने में फायदा, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू बी इन वन वेरिएबल ओनली, है ना। वी आर नॉट सपोज टू अज्यूम द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, वी आर सपोज टू अज्यूम द वैल्यूज ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो एक ही वेरिएबल मानेंगे तो उसको लेंथ को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, चलते हैं फिगर की तरफ। सो दिस इज माई लेंथ, सो लेट्स से कि ये आ गई मेरी एक्स मीटर्स, मतलब मैंने अज्यूम कर ली, आ तो क्या गई, आएगी तो बाद में जब सॉल्व करेंगे कितनी आएगी देखते हैं। दिस लेंथ इज व्हाट, एक्स मीटर्स, दिस लेंथ इज एक्स मीटर, तो मेरी ब्रेड्थ ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, x+3 मीटर्स, सो द ब्रेड्थ विल बी व्हाट, x+3 मीटर, x-3, 1 सेकेंड अगेन रीड करें, 3 मीटर लेस है, ऑब्वियसली ब्रेड्थ कम है, तो x-3 मीटर्स, ये आ गई मेरी ब्रेड्थ। टेल मी वन थिंग, अगर ये x-3 मीटर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस भी x-3 हो जाएगा, बिकॉज रेक्टेंगल क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल करेगा रेक्टेंगल है, तो ये ऑपोजिट साइड इक्वल होने की वजह से उसका बेस भी क्या है, x-3। अच्छा, एक चीज और बनाना भूल गए, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल वो हमको गिवन है, अल्टीट्यूड मींस द हाइट, द हाइट ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके, एंड इट इज गिवन एज 12 मीटर्स आई गेस, देखते हैं, परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस, और ये कितना गिवन है, इट इज गिवन एज, एक बार और देख लेते हैं, 12 मीटर, यस, 12 मीटर इज द हाइट, ओके। चलो, अब चीजें फिगर ड्रॉ हो गया, तो अब चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। देखो, लेंथ है हमारे पास x मीटर्स, मैं सीधे सीधे अब क्लियर कट लिखता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स फिनिश द क्वेश्चन, वेरी, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, देखा जाए तो बस फिगर बना ले तो, है ना, ओके। सो लेंथ को मैंने क्या माना था, x, लेट द लेंथ बी x, लेट द लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, बताना पड़ेगा उसकी लेंथ, क्योंकि दो पार्क्स है हमारे पास, एक ट्रायंगुलर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर्स, बी x मीटर। सो फ्रॉम हेयर ऑन, जैसे मैंने इसकी लेंथ को x मीटर्स माना, तो सो द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आ जाता है, द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आ जाता है, इट कम्स आउट टू बी व्हाट, rectangular path comes out to be what, x-3 meters, ओके। ठीक है, तो अब जैसे मेरे पास लेंथ एंड ब्रेड्थ है रेक्टेंगुलर पार्क का, तो आई कैन फाइंड आउट द एरिया, सो लेट्स फाइंड द एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, वैसे दोनों का एरिया चाहिए, इसका भी चाहिए उसका भी चाहिए, तो एक का तो निकालें। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, फिर बात करेंगे उस वाले पार्क की, रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो x इंटू x राइट, तो x इंटू x-3 को सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं, दैट मच ऑफ मीटर स्क्वायर, यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगी, तो x² - 3x, दिस मच ऑफ मीटर स्क्वायर, this is actually the length, this is actually the area of this rectangular part। अब चलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल का, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मेरे पास बेस भी है, मेरे पास हाइट भी है, अगर बेस एंड हाइट गिवन है तो द बेस्ट फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैसे तो और फॉर्मूलाज भी होते हैं, लाइक हीरोन्स फॉर्मूला एंड अदर टेक्निक्स भी होती हैं, लाइक इंटीग्रेशन टेक्निक्स भी होती हैं, आप फर्दर आगे सीखेंगे 11th-12th में, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, द सिंपल फॉर्मूला। सो नाउ, है ना, तो आ जाओ अब ट्रायंगुलर पार्क की बात करते हैं, तो ट्रायंगुलर पार्क के बारे में मैं ये जानता हूं, अगेन वी हैव, उसका बेस पता है मुझे, बेस ऑफ ट्रायंगुलर पार्क, एंड उसकी अल्टीट्यूड भी पता है मुझे, बेस ऑफ ट्रायंगुलर पार्क एंड अल्टीट्यूड,
एंड अल्टीट्यूड या हाइट पे कहते हैं ऑफ ट्रायंगुलर। ये दो बातें मुझे पता है। कहाँ से पता चली? अल्टीट्यूड तो गिवन था 12 मीटर का, और बेस जो है मैंने गिवन इंफॉर्मेशन से डिराइव किया है कि ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क के बराबर है, लाइक x-3 उसकी ब्रेड्थ थी तो इसकी ब्रेड्थ x-3 मीटर, एंड अल्टीट्यूड ऑलरेडी गिवन था 12 मीटर। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मैं इसका भी एरिया निकाल लेता हूँ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, area of rectangular park will be like half into base into height. So base is x-3 and height यानी कि altitude is 12. So 2 से 6 times and this much of meter square, ये भी area ही है. So 6 into x-3 will come out to be 6x minus 6 3 जा 18 meter square. तो ये लो साहब, अब ट्रायंगुलर एरिया, ट्रायंगुलर पार्क का भी, सॉरी रेक्टेंगुलर लिख दिया मैंने गलती से बच्चों, इस ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर तो ऊपर निकाल चुके हैं ना, तो रेक्टेंगुलर ऊपर निकाल चुके हैं और ट्रायंगुलर का यहाँ निकाल लिया। अब दोनों एक्स की फॉर्म में है, दोनों एरिया हमारे पास एक्स की फॉर्म में है, और इन दोनों एरिया में कनेक्शन क्या है, हमको कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है, जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया वो 4 स्क्वायर मीटर्स मोर है, यानी ज्यादा है। तो यानी कि इन दोनों के एरिया का डिफरेंस 4 मीटर स्क्वायर होगा, और ज्यादा किसका है? रेक्टेंगुलर का। तो यानी कि रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया में से अगर ट्रायंगुलर पार्क का एरिया माइनस कर दे तो वी विल गेट दैट डिफरेंस 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया विल बी इक्वल टू ट्रायंगुलर पार्क के एरिया में 4 मीटर स्क्वायर ऐड करें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया में से 4 मीटर स्क्वायर माइनस करें तो विल गेट ट्रायंगुलर पार्क के, कैसे भी कर सकते हैं ना, तो वो सेम इक्वेशन बनेगी। बात एक ही है ना, कुल मिला के दोनों में डिफरेंस है 4 मीटर स्क्वायर को, बड़ा कौन है? रेक्टेंगल बड़ा है। सो फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन वी कैन कंपेयर द एरिया ऑफ बोथ द पार्ट्स में। यहाँ तक मैंने एरिया तो निकाल, मतलब एरिया दोनों का तो निकाल लिया है। अब यहाँ पे सेकंड सेक्शन शुरू होता है क्वेश्चन का, जब अपन कंपेयर कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ, मैं कर रहा हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, शॉर्ट में लिख देता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क, और डिफरेंस कितना है? 4 मीटर स्क्वायर। ट्रायंगुलर पार्क और डिफरेंस कितना है? 4 मीटर स्क्वायर। चलो, तो अब हमको ये तो एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन है, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या निकाला? इन द फॉर्म ऑफ एक्स वी हैव x² - 3x, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क क्या है हमारे पास? 6x - 18, and this will be equal to 4. So on solving this we will have a quadratic equation in the form of like this: -3x minus 6x and plus 18, minus minus plus 18 equal to 4 को भी इधर ले आओ तो -4 equal to 0. So finally we have x square -3 - 6 -9x, 18 - 4 will give me 14, plus 14 equal to 0. So this is the final quadratic equation. ये रिप्रेजेंटेशन कर दिया हमने सारी प्रॉब्लम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आता है तो यहीं पे हमारा ये आंसर हो जाता है, इसका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सॉल्व करके अपन क्या निकाल सकते हैं? एक्स की वैल्यू, एंड एक बार एक्स की वैल्यू आ गई तो सब कुछ आ गया। ओके, क्योंकि हर चीज एक्स की वैल्यू में ही एज्यूम की है, एक्स की फॉर्म में एज्यूम की हमने। सो फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। तो दो नंबर सोचिए जो प्रोडक्ट 14 देते हो एंड सम -9 देते हो, तो वेरी इजी, -7 एंड -2। सो वी विल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फैक्टराइजेशन मेथड जो भी हम जानते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, splitting the middle term we will get, splitting the, I'm sorry मैं थोड़ा सा रफ एंड थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि द मेन पॉइंट इज दैट कि टॉपिक समझाना नहीं है, एक डाउट है छोटा सा, उसको क्लियर करना है। एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक ऑन द टाइम, और उस बच्ची को भी थोड़ा जल्दी भेजना है वीडियो, वो वेट कर रही है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं रफली एंड थोड़ा सा क्विक चल रहा हूँ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट, splitting the middle term we get, let's see, x square, so -7 and -2, so -7x minus 2x plus 14 equal to 0. तो अज्यूमिंग दैट कि आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये सारी टेक्निक्स आती होंगी, क्योंकि वी आर एट द वर्ज ऑफ अवर एग्जाम्स कमिंग द नेक्स्ट मंथ, तो ये सब आपको आता होगा ना। तो आई एम नॉट हेयर टू एक्सप्लेन यू द एंटायर टॉपिक, है ना, तो मैं मानता हूँ भी ये सब आता होगा। x² - 7x, we will take x common and we will have x - 7 remaining inside the bracket, और -2x plus 14 में से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो x - 7 इधर भी बचता है, x - 7 again remains the common factor, and the remaining factor will be x - 2 equal to 0. So दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0, तो आइदर ये 0 या वो 0, या तो x - 7 equal to 0 और
either we will have x minus 2 equal to 0. So x equal to 7, x equal to 7 or x equal to, सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसमें से देखो x इक्वल टू 7 ही पास होगा, x इक्वल टू 2 रिजेक्ट हो जाएगा. टेल मी व्हाई. देखो x की वैल्यू 2 इसलिए रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि x की वैल्यू 2 अगर मैं पुटअप करता हूँ सारे डेटा में अगर मैं पुटअप करता हूँ तो लेट्स सी देखो x की वैल्यू 2 यहाँ तो चलेगी, लेंथ तो 2 मीटर हो सकती है, बट ब्रेथ देखो क्या थी, एक्स माइनस थ्री. तो अगर मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ 2 - 3 तो ये -1 आ जाता है. एंड ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ब्रेथ की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और ये ब्रेथ ही नहीं है, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस भी है. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस ले लें या रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ ले लें, दोनों वैल्यूज कैन नॉट बी नेगेटिव. तो x की वैल्यू 2 से इसकी ब्रेथ नेगेटिव आती है, इसलिए x की वैल्यू 2 जो है यहाँ पे हम रिजेक्ट करते हैं, है ना. वी विल राइट इट इन द एग्जाम कि ये क्यों हम रिजेक्ट कर रहे हैं. कैसे राइट करेंगे, कैसे लिखेंगे हम कि rejected as it gives, as it results uh, in the negative breadth of rectangular park या बेस ऑफ ट्रायंगुलर पार्क, कुछ भी लिख सकते हैं ना. तो भी एक रीजन देके इसको रिजेक्ट कर दिया. तो x इक्वल टू 7, सो फाइनली वी विल हैव व्हाट, x इक्वल टू 7. अब आपसे जो पूछा था वो आप फाइंड आउट करो. आपसे उसने क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ एवरीथिंग पूछा होगा, सारे पार्क्स का लेंथ एंड ब्रेड्थ. फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ पूछा है आपसे ना. सो x इक्वल टू 7 इज द फाइनल सॉल्यूशन. नाउ व्हाट, लेंथ क्या माना था हमने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये हमने x माना था एक्चुअली, है ना. और ब्रेथ हमने क्या माना था, उससे 3 मीटर कम माना था, अज्यूम किया था. तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमने माना था x माइनस 3 मीटर्स. सो x की वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, जो वैलिड वैल्यू है, रिजेक्टेड नहीं, जो वैलिड. तो यहाँ से ये आ जाता है 7 मीटर्स. 7 मीटर्स हो जाती है मेरी लेंथ, एंड 7 - 3 विच विल गिव मी 4 मीटर मेरी हो जाती है ब्रेथ. तो लेंथ हो जाती है 7 मीटर्स एंड ब्रेथ हो जाती है 4 मीटर्स. ये आपके फाइनल आंसर्स हैं. यू कैन वेरीफाई द आंसर, यू कैन मैच द आंसर फ्रॉम योर आंसर कीज. इफ देयर इज एनी मिसमैच यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो और यू कैन कंसल्ट मी बाय एनी मीन्स यू वांट. एंड नितिशा आप भी देख लेना, अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो कल की क्लास में या कभी भी आके क्लास में आके पूछ लेना, क्लास के बाद भी में पूछ सकते हो. ओके, अब एक बार इसको जस्टिफाई करते हैं. देखो ये सारी चीज जस्टिफाई होती है कि देखो हमने एक्स की वैल्यू 7 मानी, दैट मीन्स लेंथ 7 हो गई, एंड ब्रेथ हमने 7 - 3 यानी कि ब्रेथ 4 हो गई, लेंथ 7 मीटर हो गई. तो इस वाले ट्राइंगुलर पार्क का जो बेस है वो भी 4 मीटर हो गया यहाँ से. ठीक है, अब दोनों का एरिया निकालते हैं. तो देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 7 × 4 यानी 28 मीटर स्क्वायर. 7 × 4 यानी कि 28 मीटर स्क्वायर. तो इसका एरिया हो गया. और उसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना होता है. तो हाफ इंटू 4 × 12 करना है. तो हाफ इंटू 4 करेंगे तो 2, और 2 × 12 करेंगे तो 24 मीटर स्क्वायर. मतलब इसको से मल्टीप्लाई करके फिर इंटू हाफ से और मल्टीप्लाई करेंगे ना. सो अल्टीमेटली विल गेट व्हाट, 24 मीटर स्क्वायर. तो यू कैन क्लियरली सी दैट, one second. Okay, you can clearly see that the difference between the areas of these two पार्क्स इज 4 मीटर्स. डिफरेंस इज व्हाट, 4 मीटर स्क्वायर. और ये बड़ा है ये छोटा है. ऐसे ही क्वेश्चन में गिवन था कि ये इसका एरिया और उसका एरिया 4 मीटर स्क्वायर उससे ज्यादा होना चाहिए और ज्यादा हो गया. तो जस्टिफाई भी हो गया हमारे आंसर से. सो दैट मीन्स हमारे आंसर्स करेक्ट हैं. लेंथ हैज टू बी 7 मीटर एंड ब्रेड्थ हैज टू बी 4 मीटर. दीस आर द फैक्ट्स. ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा. इफ यू फील एनी अदर डिफिकल्टी ऑल्सो नितिशा, सो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, यू कैन सेंड मी द स्नैपशॉट. आई विल बी रेडी at any point of time to help not only you to but any other student also. अगर कोई स्टूडेंट मुझसे नहीं पढ़ता तो मैं उसको भी हेल्प कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना. आई एम रेडी टू हेल्प ईच एंड एवरी स्टूडेंट. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, एंड ऑल्सो गुड नाइट टू ऑल.